Namaskar. Today we had called meeting for the review of previous meeting. In the previous meeting, uh, we had discussed 4 points. The first point was about the a draft report prepared by me uh, and district-wise report which was shared in the group to the concerned people and their comments, uh, their observations on this. In the meeting, it was told that the report has not been seen uh, completely by the group members, and therefore they will offer their comments only after seeing it again. In the meantime, I also shared the updated report of the Sahyadri Samaj. This was uh, like a previous report, but there are new tables were added. There were some updates. The second point was discussed about the flag or logo of Sahyadri Samaj. In fact, Baba has given flag of various Samaj while discussing about the South and the meetings and review meetings. From Sahyadri Samaj, uh, our old Margi Dada Subhas Naik ji has been attending Baba's review meeting. So, so, uh, so he may have the information about the what Baba has said about the flag of Sahyadri Samaj or logo of the Sahyadri Samaj. In fact, now Subhas Naik ji is not physically available with us. Then we had discussions and we thought that maybe his old diaries, if we can see, he might have noted down in his diaries, so that can be of some help uh, to make us to prepare the logo or the flag of Sahyadri Samaj. And there was a suggestion in the meeting that Acharya Satyavrtanand Dada was also actively involved uh, during Baba's time for Sahyadri Samaj or for this Maharashtra region. I had a discussion with Satyavatan Dada. He doesn't remember of this thing, but he said that he is coming to Mumbai. Probably he might have reached Mumbai by now, and he will see his old paper if Baba has given some instruction with regards to flag and logo of the Sahyadri Samaj. And secondly, we came to know through Satyavartan Dada, the old diaries of Subhas Naik ji is now in the possession of uh, Acharya who is actively involved in the Namaskar Veda. Namaskar Sumendra ji. Are you hearing me? Dada? I think.
हेलो। हाँ दादा नमस्कार. नमस्कार नमस्कार। So I was waiting for the people to come, but so far none has turned up. So it's good that you have come in the meeting. So I thought of recording myself the discussions. Otherwise we could have made so that I हम्म, share in the group. So I हम्म, thought I was reviewing the same thing. हम्म। Uh, in fact, probably you have also talked to Acharya Satyavardhan Dada. हाँ, Because उनसे when बात की I मैंने। talked, yeah, when I talked to him, then he said that he is coming to Mumbai. Probably हम्म। by now he will be in Mumbai. Uh, मंथ and मंथ एंड को आने वाले बोले थे। हाँ नहीं, I think today he has reached Mumbai. ओके ओके ओके। And he was saying that he will also search his old papers to find out हम्म, if Baba has given anything about the flag and logo of Samaj. Then हम्म। he also said that Subhas Naik's diary is now in the possession of Dr. Acharya रूपातीतानंद दादा। Rupati Dada. So he हाँ। is having all those diaries. So now we have to lay hand on those diaries and see ourselves if he has written anything about the flag and Samaj and the हम्म, logo or any instructions of Baba. If that we get, then our job will be very easy. हम्म। So, मैं कल फोन करूंगा दादा को, रूपातीतानंद दादा को। और Rupati तब Chandra तक को मैंने कुछ पॉइंट्स जमा किया वो डायरी के लिए। अच्छा अच्छा हाँ डायरेक्टली वो अभी कहाँ और तब तक रह रहे हैं वेर ही इज नाउ शेलू में। सेलू में ओके हम्म, तो एक बार नहीं तो वहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जा करके उनसे बात करनी पड़ेगी उनसे बात करके जाएंगे कि वो डायरी उन्होंने हम्म, कहाँ रखी है वो सेलू में रखे हैं कहीं हम्म, और रखे हुए हैं ये भी हो सकता है हम्म। तो एक बार आप उनसे आप बात कर लीजिए रूपति चंद्र से हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, कल कल बात करूंगा। हाँ और तब तक मैंने कुछ पॉइंट्स भी जमा किए हैं, उसको थोड़ा सा मैं हाँ रिफॉर्म कर रहा हूँ। आपके साथ थोड़ा अच्छा शेयर करता हूँ ऐसे वर्बली। हाँ बोलिए बोलिए सेंटिमेंटल लीगेसी के बारे में अगर बात की जाए राइट तो अगर भगवान शिव के नाम से अगर बात किया जाए तो हमारे देश में जो है हाँ हाँ शायद 12 ज्योतिर्लिंग है जो हाँ हाँ शिव भक्तों के आराध्य रहते हैं सारे। हाँ हाँ उसमें से 5 महाराष्ट्र में है और पांचों जो है सह्याद्री हाँ समाज में आते हैं, ओ 12 माय में से। गॉड 12 में से 5 महाराष्ट्र में अच्छा हाँ, महाराष्ट्र, और वो भी पांचों सह्याद्री समाज में। अच्छा कहाँ एक कहाँ है पर है एक है औंधनाथ नागनाथ, औंध नागनाथ उसका नाम है, वो हिंगोली जिला में है। एक अच्छा भीमाशंकर है वो पुणे में है। एक अच्छा कृष्णेश्वर जो है वो औरंगाबाद में है। अच्छा फिर एक परली वैद्यनाथ वो बीड़ में है। और परली वैद्यनाथ जो है वो सबसे पुराना ये है, ज्योतिर्लिंग है। अच्छा और पांचवा त्र्यंबकेश्वर नासिक में। अच्छा नासिक में एक होगा हाँ हाँ हाँ, तो ये हो गया शिव के बारे में। फिर अगर ओके कृष्ण के नाम से देखा जाए तो पंढरपुर एक फेमस मंदिर है, और लेकिन उससे जुड़ी जो भक्ति मूवमेंट है, हाँ जो आषाढ़ी आषाढ़ी एकादशी की यात्रा निकलती है, हाँ हाँ वो शायद वन ऑफ द बिगेस्ट ऐसी इस तरह की यात्रा होती है वो जिसमें कि विठला स्टेट विठला के गाते हर रहते तरफ हैं हाँ, विट्ठल विट्ठल गा के जो है 15-15 दिन तक वो अपने अपने गांव से हाँ पैदल निकल के वहां पहुंचते पैदल हैं, निकलते रहते हैं पंढरपुर जाने के लिए रहते हैं पंढरपुर जाने के लिए, हाँ स्पेशली आषाढ़ी एकादशी के दिन। तो वो क्या फिर वैष्णव अगर समाज को मानते हैं हाँ, वो वैष्णव है, वो सारे कृष्ण लोग हैं, कृष्ण भक्त है। अच्छा ओके वो ओके वैष्णव मान सारे हैं। जी फिर अगर स्पिरिचुअल कांग्रीगेशन के हिसाब से देखा जाए तो नासिक में जो 4 कुंभ मेले होते हैं उसमें से 2 हाँ उत्तर हाँ प्रदेश में होते हैं, एक मध्य प्रदेश में और एक महाराष्ट्र में नासिक में होता है कुंभ मेला। हाँ राइट हाँ हाँ फिर अगर शक्ति उपासना के बारे में सोचा जाए तो भवानी का जो रूप होता है वो महालक्ष्मी कोल्हापुर में और तुळजा भवानी हम्म
वो शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त लोग जो रहते हैं वो वहां पर करते हैं। अलग अलग जगह भी है, लेकिन ये मेन दो है राइट, शक्ति की पीठ। हम्म, और भी मैं खोजूंगा इसे, मतलब इस तरह के कोई शक्ति पीठ और महाराष्ट्र में फेमस है क्या, हम्म, क्योंकि पूरे देश में बोलते हैं 50 शक्ति पीठ है जिनको लोग पूजते हैं। अच्छा। फिर अगर राम का नाम लिया जाए तो वनवास जो है राम का पंचवटी इधर ही हुआ था शायद, और वो तो फिर ये जंगल में। नासिक के आसपास ना, कहीं इलाका होगा वो। नासिक में पंचवटी जो है हम्म, वहां पर हुआ था। जो हालांकि ये हमारे हिसाब से माइथोलॉजी है, लेकिन लोगों के नहीं लिए ये आज भी नहीं, असलियत लेकिन हाँ, जो लोगों की भावना है उसकी हम बात कर रहे हैं, हाँ। है। तो इसका मतलब जो फिर तीन प्रमुख भगवान हो गए, शिव, कृष्ण हम्म, और राम, तो तीनों से हम्म, जुड़े हुए यहाँ पर स्थान है। हाँ, वो भी सह्याद्री समाज में। वो भी शायद समझ में हाँ, क्योंकि पंढरपुर आता है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। आई। अच्छा। फिर दूसरा एक सेंटिमेंट है अखंड भारत का, जो बाबा भी बोलते थे, एक बार फिर हम्म, से वो पुराना भारत लीगेसी हो जो होगी करके। हम्म, तो अगर मराठा एम्पायर का हम लोग देखेंगे, जो मैप था हम्म, अखंड, जो मराठा एम्पायर एट व्हेन इट वाज एट इट्स पीक, हम्म, तो वो पेशावर से लेके कटक ओडिशा और तंजावुर तमिलनाडु तक पूरा फैला हुआ था। अच्छा। वो एक है। फिर अगर आर्किटेक्चर के बारे में बात की जाए तो अजंता है, वेरूळ है, धारापुरी है, ये तो खंडेरी है। बौद्ध काल की चीजें हो गई, बौद्ध हाँ, काल के बाद की लेकिन चीजें हो है गई, हाँ। लेकिन है इसी समाज में, सह्याद्री समाज में हाँ, है। हाँ, अजंता लगा यहीं पर। हाँ। फिर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचा जाए, अगर रिसेंट हम लोग आएंगे, तो इंडिया का जो हाँ, फर्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया था, जैसे एमआईडीसी वगैरह बोलते हैं ना, हाँ, हाँ, वो कोल्हापुर में शाहू महाराज ने बनाया था, उद्यम नगर नाम दिया था। अच्छा, अच्छा, दैट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट व्हिच वाज बिल्ट बाय एनीबॉडी इन इंडिया। ओके, ओके, तो ऐसे में एक एक जो है पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर उसमें से जी, उसी को हम लोग जो है लोगों के लिए या इसके लिए, या करसुबाई इज द हाईएस्ट पीक आई थिंक इन द सह्याद्री एंड डाउन रेंजेस। ओके, सह्याद्री का जो है, और कृष्णा हम्म, और गोदावरी जो नदियां है वो यहाँ से निकलती है सह्याद्री से ही। राइट, एक राइट, नासिक से और एक महाबलेश्वर से। हाँ, राइट, और ऑलमोस्ट पूरे साउथ को पानी देती है। कावेरी वहां से आती है शायद कर्नाटक से कहीं से। हम्म, लेकिन कृष्णा और गोदावरी जो है, ये साउथ हम्म, इंडियंस के लिए एक पूजनीय स्थान है। हाँ भाई, पूरा तेलंगाना और जैसे आंध्र प्रदेश जो है, हाँ, जैसे लोग ये सब, गंगोत्री जाते हैं, हाँ, हाँ, तीर्थ स्थान गंगोत्री जाते हैं या यमुनोत्री जाते हैं, वैसे जो है तेलंगाना और यहाँ के लोग जो है वो जी, या तो गोदावरी के इधर आएंगे त्र्यंबकेश्वर में जी, तीर्थ स्नान करके, या हम्म, फिर महाबलेश्वर में जाएंगे कृष्णा के उगम स्थान पर। अच्छा, तो ये दो भी यहाँ पर मेन है। और ओके, फिर मैंने और भी डेटा कलेक्ट किया है रूलर्स का वगैरह सारा, उसको मैं थोड़ा कंपाइल कर रहा हूँ ओके। ये जो आप रूलर्स के डाटा बारे बता में। रहे हैं, जो हमने एक हाँ, रिपोर्ट आपको दी है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसके अंदर भी ये सारी हाँ, चीजें लिखी हुई है, जो अभी आपने जैसे डिस्कस किया ना, ये मंदिर हाँ। के बारे में नहीं या नहीं, जो मैंने और स्थान। मैंने ये कलेक्ट किया, ये जो चीजें मैंने अभी बताई ये कलेक्ट मैंने स्पेशली फ्रॉम लोगो और दिस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मतलब इसको जो है इकट्ठा करके कि हम लोग अगर कुछ सोचना है कि हमारा लोगो क्या होगा या हमारा क्या होगा, तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग ज्वाइन करके या कुछ करके हम लोग उसको बता सकते हैं। एज ए डेटा इज डिफरेंट, हम्म, एंड टू मेक लोगो और सिंबल और समथिंग, इसमें से हम क्या यूज कर सकते हैं विच इज मोर पॉपुलर, विच विल राइट, हैव मोर इफेक्ट ऑन द राइट, मेंटालिटी ऑफ द पीपल। राइट, इसके लिए मैंने जिससे इसको जो आप, है जिससे लोग शेयर अपने किया। को कोरिलेट कर सके, मतलब ऐसी चीज होनी हाँ, चाहिए यस, जिससे। करेक्ट। क्योंकि अगर इनिशियली भगवान का नाम लेने से और ऐसा बोलने से अगर हो जाता है, तो लोग तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं इस चीज से। हम्म, तो हम लोग अगर इस हिसाब से बोलेंगे कि चलो 12 में से 5 ज्योतिर्लिंग सह्याद्री समाज में है, ये है वो हम्म, है, भक्ति मूवमेंट जो है हम्म, भारत की सबसे बड़ी
वन ऑफ द बिगेस्ट पंढरपुर की यात्रा होती है, या राम का जो है जीवन काल का मेजॉरिटी टाइम इधर पंचवटी और आसपास के वनवास में गया, तो वो एक कनेक्शन हो जाता है ना फिर से लोगों के साथ। राइट। उस हिसाब से मैंने ये सारा कलेक्ट किया। नहीं, बहुत अच्छा है। इसको और थोड़ा सा इसको डिटेल्स भी ले करके, और एक सह्याद्री समाज का जो एक रिलीजियस टच है, उसके ऊपर एक हम लोग रिपोर्ट बना करके रख सकते हैं। तो हाँ, इसमें वो भी कर रहा ये हूँ। सर, मैंने हाँ कुछ वो, कुछ कलेक्ट किया है सेंट्स के नाम और उनका क्या क्या कार्य रहा, जी जी, और उन्होंने कौन कौन सी अगर किताबें लिखी है, कौन से, जैसे हर सेंट का अपना एक लिटरेचर है, तो वो लिटरेचर और क्या क्या है, कहता है किसके बारे में कहता है, वो अगर शॉर्ट में हम लोग इकट्ठा करेंगे तो इट विल बी अ नाइस थिंग। राइट। प्रचार में इसको हमको बहुत काम में आएगा प्रचार में। इनफैक्ट हम जिससे बात करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि हम यस। किस बैकग्राउंड से बात कर रहे हैं, और हमारा जो अप्रोच है वो इन लाइन होगा। मतलब हम इधर उधर की बातों में भटकेंगे नहीं। इसलिए ये डाटा होना, नहीं, इस और तरह इस की इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, होना बहुत बहुत जरूरी सारे, है। इसमें जो है बहुत सारे जो गाने वगैरह या अभंग बोलते हैं ना उसको, हाँ, अब हम, अभी एक है रिसेंट, एक प्रभात संगीत के ऊपर में और कीर्तन के ऊपर किताब छपी थी, कंपाइलेशन था, उसमें इन्होंने लिखा है कि बाबा ने जो है हम्म, महाराष्ट्र का अभंग जो है वो एक प्रभात संगीत का पिलर है, वन ऑफ द पिलर्स। अच्छा, कौन सा है गाना, कुछ बताए? नहीं नहीं, इस ये ट्रेडिशन का एक गाना नहीं है, अच्छा। जो अभंग ट्रेडिशन है उसमें से जो है दैट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ प्रभात संगीत, ऐसा उसमें उन्होंने लिखा था। एक अच्छा। बेस है प्रभात संगीत का, वन ऑफ द बेसिस। ओके। तो मैं बात कर रहा था तो सर्वात्मन दादा मेरे को बोले अभांग करके, तो मेरे को पहले समझ अच्छा। में नहीं आया अभांग क्या होता है, मैंने तो ऐसा ठीक सुना है। नहीं था महाराष्ट्र में। नहीं, अभंग तो सब आप फिर सबने जानते हैं। हाँ, फिर मैंने सोचा, हाँ मैं बोला अभांग नहीं है अभंग है, हाँ, उनको अभंग। उनका उसका मीनिंग समझाया, फिर अभंग का मतलब क्या होता है, और वो ये शब्द कैसे आया ये भी उनको मैंने समझाया उस समय। आपको मालूम है इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में? अभंग के बारे में? हाँ। हाँ, हम जानते हैं। अभंग के बारे में तो बहुत सारे जो क्लासिकल, यहाँ जितना म्यूजिक नहीं है। नहीं नहीं, ये हाँ, ये नाम कैसे आया अभंग? नहीं, उसको डिटेल्स नहीं मालूम। तुकाराम ने जो गाने लिखे थे सारे हाँ डिवोशनल सॉन्ग्स, हाँ। वो उसकी गाथा बोलते थे, मतलब जो हम्म, कंपाइलेशन था एक या पोथी थी, हम्म, उसको जो है लोगों ने नदी में डुबा दिया, अच्छा। और ऐसा कहते हैं कि वो तर के फिर से ऊपर आ गई, अच्छा। तो कभी भंग नहीं हो सकती। ओके ओके। इसको कोई भी मिटाना चाहे, इसको भंग करना तो, चाहे, तो ये कोई तो इसको मिटा नहीं सकता, हाँ हाँ। ये इसलिए वो अभंग का, अभंग हो गए। अभंग तो संस्कृत शब्द है जो भंग नहीं हो सकता हाँ है, जिसको कि यू कांट पार्ट। हाँ। तो तो उसके वो तो बाद से अभंग जो है शब्द नहीं महाराष्ट्र आता में है। जितने भी भक्ति गीत है, जिन्होंने भी लिखे हैं, हाँ। ज्ञानेश्वर हो, एकनाथ हो, नामदेव हो, मुक्ताबाई हो, या सखू हो, संत सखू जनाबाई हो, वो सबको अभंग बोलते हैं। अच्छा। और इसमें बहुत सारे जो है हम लोग हमारी जो पूजा की स्टाइल है उससे कोरिलेट कर सकते हैं। अच्छा। जैसे एक गाना है, इकडे तिकडे शोधिसी कारे फिरसी वेड्या परी असे तो देव तुझ्या अंतरी। वैसे बहुत सारे गाने हैं, कुछ जो है हम्म, डायरेक्ट विट्ठल के नाम से गाए हैं, बनाए हैं, अच्छा। कुछ ऐसे बनाए हैं कि इंसान को बोलता है कि यहाँ वहाँ क्या खोज रहा है, भगवान तो तुम्हारे अंदर ही है, ऐसा है वैसा है। सो वी कैन राइट कोट राइट। ऑल दिस सॉन्ग्स जो हमारे प्रैक्टिस, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उससे कोरिलेट करता है। मेल खाता है। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना पहले, कि जो 5 ज्योतिर्लिंग हमारे सह्याद्री समाज में हैं, तो हम्म। जो शिव का जो बेस है वो तंत्र है। तंत्र साधना ही उसका उनका हम्म। बेस है। तो वो तंत्र यस। साधना की, और जो उनकी जो शिक्षा रही है, तो बाबा ने तो हम्म। शिव की शिक्षा के बारे में तो सब कुछ दिया हुआ है। तो उसको हम हम्म। कोरिलेट करेंगे यहाँ की जो प्रैक्टिसेस करेक्ट हैं, और वो करेक्ट उसको करेक्ट। कैसे कोरिलेट करते हैं। तो
फिर उसमें एक अच्छा बन जाएगा। हम्म। यहाँ तक कि बहुत सारे संतों के अभंग है कि जिसमें वो बोलते हैं हाँ। कि शिव और कृष्ण दोनों एक ही है। हम्म, तो इस तरह के जो अभंग है, हम लोग इस तरह के जो गाने हैं वो हम लोग इकट्ठा करके उसको भी हम लोग हम्म, अपने पास रख सकते हैं। तो टाइम टू टाइम क्या है, ये गाने को भी हम लोग अगर बोलेंगे बीच में बोलते हम्म, समय, ये करते समय, कि हमारी फिलोसॉफी क्या है, हमारे सेंट्स ने क्या कहा है, हम्म, तो कनेक्शन हो जाता है। वो लोग को लगेगा नहीं कि ये कुछ अलग बात कर रहे हैं। राइट। जैसे अभी क्या होता है, ये लोग जालना में जो रिवर का काम करने जाते हैं, नरेंद्र दादा, ये दादा वगैरह, वो लोग हम्म, आनंद मार्ग के बारे में बात करेंगे तो बोलते हैं आप हमको कन्वर्ट करने के लिए आए हैं। हाँ, नेचुरली, हाँ। क्योंकि उनको लगता है कि ये अलग ही है कुछ सोच इनकी। नहीं, इसलिए समाज का मूवमेंट बाबा ने जो दिया था, उसमें ये सब चीजें क्यों बाबा ने बताया कि हमको ये सारी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि हमको समाज के लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, यस, कनेक्ट करने के लिए उनके साथ जाना कनेक्ट करने पड़ता के लिए ये सब बहुत जरूरी है। है। यस। अदरवाइज आपको कोई नहीं पहचानेगा। हम्म। दो चार 10 आदमी मिल जाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे, या कहेंगे नहीं हम म्यांमार हमको अच्छा लगता है, लेकिन मास्टर्स के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। यस। अच्छा, अभी हम लोग साथ में रोशन कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। रोशन जी, सुन रहे हैं आप हम लोग की आवाज? हाँ दादा, नमस्कार हाँ। दादा। हाँ, नमस्कार दादा, नमस्कार। तो नमस्कार। हाँ, शुभेंदु दादा, मैं आपका नंबर जो है ना, मेरे पास क्या है, कुछ बॉम्बे के नंबर मिस हो गए मेरे नया मोबाइल लेने के कारण, और पता नहीं वो कैसे हो गया। अपना आप नंबर मेरे पास, आपके पास होगा ना, आप अपना नंबर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर हाँ दीजिए। ठीक है, ओके। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में तो है ना, वहाँ से आप सब ले सकते हैं ना सर, सबका? पर इनका नंबर मेरा तो दिख नहीं रहा है, इनका नाम जो है ना व्हाट्सएप में अच्छा, वो नाम आता है। अच्छा अच्छा, ओके, आइडेंटिटी नहीं आ रही इसके अंदर। तो बाकी दादा, आप लोग का क्या मतलब, अभी तो मैं जुड़ा एक्चुअली, मैं तारक से कुछ बात कर रहा था फोन पे, मार्गी जो है वो अपना, आप जानते हैं तारक को, तो मैं हाँ हाँ, लेट हो गया, जानते तो हैं। मैंने फिर मैसेज देखा तो फिर लेट हुआ ज्वाइन। तो अभी तो सिर्फ दादा की बात मैंने सुनी, वो जो महाराष्ट्र का जो भक्ति संगीत, उसको किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो और हम लोग का क्या, और कब तक हम लोग कर सकते हैं पूरा काम, ये कोई एक एक्चुअली लक्ष्य है। अभी हम देख रहे हैं कि अब सह्याद्री समाज के नाम पर ये दो चार लोग ही हम लोग एक्टिव हैं। दादा आ, एक आदमी भी चाहे तो पूरे भारत का बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक आदमी लग जाए पूरे जीवन में तो हो जाएगा। मैं ये कह रहा था कि मैं नहीं नहीं, पास जो भी वो, चीजें हैं, हाँ मैंने वो बोलिए। 24 जिलों का जो आपको एक भेजा था ना, मैंने वो 6-7 ग्राफिक्स में चीजें। हाँ, औरंगाबाद कब भेजा आपने? हाँ, तो वो मेरे पास लगभग सारे जिलों का, मेरे एक फ्रेंड है, वो भारत सरकार एक किताब निकालती है, वो हजारों रुपए में हाँ वो किताब आती है। तो हाँ उससे मैंने बोला कि चलो यार तुम भेज देना, और उसने मेरा कई बार हेल्प भी किया है, तो मैं सारा चीज आपको भेज दूंगा। वो हाँ कुल मिला के एक 10 पेज, 8 या 9 पेज पड़ता है एक डिस्ट्रिक्ट का। तो ऐसे अगर हम लोग गवर्नमेंट का डाटा है, तो अगर हम लोग उसको पुट करके कहीं कहीं यूज करें, और वो सारा का हाँ। सारा क्या ग्राफिक्स में है, उसको करना कुछ नहीं, जब हम लोग मतलब जब बनाएंगे डॉक्यूमेंट, तो उसको ले हम्म, जाके और वो वहीं पर आपको जो है टाइपिंग वाला ही कर देगा। तो इस तरह मैं आपको भेज दूंगा सारा, वो 200 फाइल है, मतलब 200, सॉरी वो है, क्या कहते हैं, पिक्चर्स हैं, टू ओके। हंड्रेड्स के आसपास। तो हाँ। मतलब कि टोटल कितने, हमारे 23 डिस्ट्रिक्ट है ना, हम्म, तो लगभग लगभग 200 के आसपास में वो है। मैं भेज देता हूँ आपको धीरे धीरे करके एक जा, तो उसको रख लीजिए, बाकी उससे कुछ हेल्प हो जाए। मेरे अंदाज से काफ़ी चीज़ है उसमें, मोटा मोटी चीज़ें हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, उसका इकोनॉमिक पक्ष का तो दिया हुआ है लगभग, जैसे कि हम कितना कितना वहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, कितना बैरन लैंड है, कितना फॉरेस्ट है, कितना बैंकों में पैसा है, वो सब जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज है उसमें दिया हुआ। पॉपुलेशन क्या है, कितने लोग वर्क फोर्स है, कितना क्या, वो तो दिया हुआ है उसमें। एक तो ये हो जाएगा अपना। फिर बाकी दादा बता रहे हैं कि वो जो रिलीजियस जो जो वहाँ के संत का है, मैं इसमें चाह रहा था कि संत ज्ञानेश्वर के ऊपर तारक ने किया है पीएचडी। अच्छा, उसने पीएचडी किया, ओके। हाँ, वो जो उसका थीसिस है। तो मान लिया अच्छा। जाए कि दादा जो बात कर रहे थे, मैंने लिखा भी था कहीं किसी को कि उसको रखना चाहिए इसमें साहित्य ग्रुप में, क्योंकि उसने किया है। ने उनको रखा हुआ है, नहीं रखा तो उनका। है, मतलब कि उनसे हेल्प लेने की बात मैंने कही थी, मैं भूल गया हम्म, किसको कहा था, मैंने पर्सनल में लिखा था। तो अच्छा। उसने मान लिया जाए, अगर उस दादा ने जो चीज़ है, अगर उसके साथ बात करके हम लोग चाहे हेल्प लेके,
तो हाँ उसको हम एक सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, और जो अपना आनंद मार्ग के आइडिया को भी उसमें इंड्यूस करके, और जो भक्ति परंपरा है वहाँ पर महाराष्ट्र की, उसका उसके हेल्प से थोड़ा बहुत हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा मतलब उसका वो कर सकते हैं, उसने किया हुआ है तो हम लोग कर लेंगे वहाँ से, तारक जी ने किया है। ओके। बाकी आपका कब तक, मैं ये चाहे कब तक हम लोगों ने कोई डेडलाइन डिसाइड किया, मतलब हम इतने दिनों में कर देंगे उस चीज को पूरा? नहीं, हम लोग का तो ये था 1 महीने के अंदर सब कर लेना चाहिए। ठीक तो है, तो मैं दो, हमने ऑलरेडी रिपोर्ट बना दिया, अपने लगता है रिपोर्ट देखी नहीं है आपने। नहीं देखी है मैंने या आपकी तो रिपोर्ट। नहीं नहीं देखा मैंने नहीं थोड़ी सी आपने। पढ़ी उसको, लेकिन फिर मेरा ऑफिस टाइम और ये, और मैं तो थोड़ा अब जब प्रभास तक संगीत आप का भी काम कर रहा हूँ। एक लोग क्या हो रहा है ना प्रभास कि संगीत। अब मान लीजिए मैं कुछ बना रहा हूँ हम्म और आप बिना उसको पढ़े हुए फिर कहीं से और नई रिपोर्ट लेकर के आ जाएंगे, तो क्या वो बहुत मिसमैच हो जाएगा, उसको कंपाइल करना मुश्किल हो जाएगा। हम्म हमने 2 रिपोर्ट बनाकर दी हुई है, एक हम्म डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट है और एक हम्म है जो सह्याद्री समाज का एक डाटा है। हम्म तो उस दोनों को आप एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने जो औरंगाबाद का आपने भेजा ना उसको हमने पढ़ा। हम्म अ, अच्छा, वो ये तो उस तरह की हम रिपोर्ट बनाएंगे तो हमारे पास कम से कम वो 400-500 पेज की रिपोर्ट बन जाएगी। इतनी हम्म बड़ी रिपोर्ट चाहिए नहीं हम लोग को, हम्म क्योंकि वो जो आप जिस बुक की बात कर रहे हैं, मैं जिसकी कॉस्ट 1000 रुपीज है, उसको हमने देखा है। वो सेंसस डाटा का ही है, और हम्म उसी सेंसस डाटा को ही बेस लेकर के हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं। हम्म तो टेबल हमने सब बना लिया है। हम्म 2-4 टेबल्स हमारी बननी बाकी हैं, जो कि हॉस्पिटल्स के ऊपर है या स्कूल कॉलेज के ऊपर की थी, और वो फार्मिंग लैंड के ऊपर था। हम्म कि कितनी कहाँ पर सिंचाई होती है, कहाँ नहीं होती है, कितनी बैरल लैंड है, कितनी फॉरेस्ट लैंड है, कितना पत्थर है, इस तरह का जो रिपोर्ट है उसको, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि वो महाराष्ट्र लेवल पर तो सब कुछ अवेलेबल है। हम्म हाँ, वो सारी जो आप टेबल कहेंगे महाराष्ट्र का मिल जाएगा, लेकिन सह्याद्री समाज के लिए आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा लेकर के फिर कंपाइल करके बनाना पड़ेगा डाटा। तो हम्म। वो एक थोड़ा सा काम है, तो अच्छा, टेबल उसमें बनाने का। हाँ एक चीज और है दादा, कि जो बैंकिंग सेक्टर का है, कि जो हाँ। बैंक में कितना क्रेडिट डिपॉजिट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है कि जब हम बिजनेस कहीं करेंगे, सपोज हम्म कि अगर हम बोलेंगे कि हमको इस समाज, इस पर्टिकुलर पिछड़े जिले को आगे बढ़ाना है, तो हम्म बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि इसको फाइनेंस कौन करेगा। तो हम्म हमने देखा कि जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं वहाँ ऑलरेडी मनी है, पर वही है कि हम्म उसको देना किसको है, ये डिसाइड करना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है। हम्म तो अगर मान लिया जाए कि उसमें से कुछ अगर हमारे काम आ जाए, जैसे आपने जो टेबल बनाया उसमें से जो चीज़, जैसे आपको बोल रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर लैंड का नहीं है आपके पास। हाँ, नहीं वो बना है, डाटा है, उसको बनाना है। सह्याद्री अच्छा, समाज का अलग से बनाना पड़ेगा ना हमको। हाँ उसको कंपाइल करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के लेवल पर तो उसमें बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा विदर्भा को और हम्म कोकण को। तो हमको रिपोर्ट बनानी है सह्याद्री समाज के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। दादा, एक सजेशन है, अगर हाँ साथ में उसका भी रिपोर्ट मिलता है, विदर्भ और इसका, तो वो अगर अलग फाइल में अगर रख देते हैं, तो हाँ आगे चल के वहाँ के मार्गियों को भी काम में आ सकता है, क्योंकि वो लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे या ऐसा करेंगे। मतलब लगे हाथ अगर कुछ भी आसानी से होता है, हाँ हाँ। तो कोकण समाज और विदर्भ का भी डेटा अगर मिलता है लगे हाथों, क्योंकि हम हम्म। लोग तो फिल्टर आउट करेंगे, तो उस नहीं फिल्ट्रेशन में अगर वो भी देखिए, हो जाता है तो एटलीस्ट रॉ महा डेटा तो अवेलेबल रहेगा। नहीं नहीं, वो सारा कुछ अवेलेबल है। क्योंकि डाटा तो हमारे पास सारा है, हम उसमें से निकाल रहे हैं। हम्म। तो वैसे ही हम तो कोकण का फिर भी निकाल देंगे और उसका भी निकाल देंगे, वो कोई इशू नहीं है। फिर हो सकता है हम्म, कोकण में फिर गोवा को निकालना पड़ेगा, गोवा का भी एक अलग से रिपोर्ट होगी। और उसी तरह से हम्म। हो सकता है कर्नाटक का कुछ एरिया हो कोकण में, वो एग्जैक्टली मुझे है मालूम नहीं कितना है। है बेड़गांव, बेड़गांव और शायद मैंगलोर तक है। हाँ, बेंगलोर तो नहीं है उसमें, नहीं नहीं लेकिन वो मैंगलोर कोस्टल एरिया मैंगलोर पे होगा। मैंग, हाँ बेंगलोर, मैंगलोर नहीं, मैंगलोर। हाँ मैंगलोर मैंगलोर होगा, राइट। हाँ, तो अब फिर वो कर्नाटक से डाटा लेना पड़ेगा, तो हम्म। उसको बनाने के लिए फिर एक अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। नहीं, एटलीस्ट विदर्भ का भी अगर करते साथ साथ में साइड में रख देते हैं तो वो भी काम में आएगा।
हाँ लेकिन चलो ये मंथ एंड नहीं, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक तो मेरे हिसाब से हमारे पास में एक स्ट्रक्चर वे में डेटा होना चाहिए। नहीं, वो विदर्भ का तो मेरे मेरे पास भी है एक, मैंने खुद ही बनाया, 60-70 पेज का है वो। और वो कई बार मैंने विदर्भ के मार्गियों को बोला भी उसको कि आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, मतलब अपना मराठी में, जो आप या जैसी भाषा आप चाहते हैं लोकल में। तो वो वहाँ कोई इंटरेस्ट हुआ नहीं, तो मेरे पास तो रखा हुआ है, मैं ड्राफ्ट करा हुआ है सारा विदर्भ का। हाँ। अच्छा। पर उसमें क्या है कि फिर वो इंटरेस्ट वाली बात है हाँ तो वो तो मैं विदर्भ का रख रखा है, डाटा भी है और डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा भी है और पूरे विदर्भ का भी है। डाटा भी अच्छा। नहीं, और इवन कि अपना जो प्रउत में, विदर्भ में तो काफ़ी चीज़ें हैं ना, जैसे वहाँ का क्या है कि विदर्भ में भी पानी का कैसा है, किस जगह ज़्यादा है, कहाँ से हम ला सकते हैं पानी, वो सब मैं एक देख के मैंने बनाया है, वो रखा हुआ है मेरे पास, 60-70 पेज का है विदर्भ का। Daga, हाँ तो you एक need to एक और मेरा, conclude in 5 minutes, please. Next. ओके, हाँ विल कंक्लूड इन 5 मिनट्स। थैंक यू। अभी मेरा एक और क्या चल रहा है, जो तंत्र साधना जो आपने बताई ना जी। दादा, हाँ उसके हाँ। बारे में मैं थोड़ा ये करना चाहता हूँ कि क्योंकि निवृत्ति नाथ जो थे उन्होंने नाथ पंथी साधना सीखी, एक और नाथ ये जो संप्रदाय अलग है। नाथ संप्रदाय जो है पूरे करेक्ट इंडिया में नाथ संप्रदाय के जैसे चीजें बनी है, जैसे नहीं, कलकत्ता में चौरंगी करेक्ट नाथ करेक्ट, है, गोरखपुर में गोरखनाथ है, जालंधर नाथ है, हाँ ऐसे करके बहुत करेक्ट सारे करेक्ट, उनके स्थान है। यस। तो वो महाराष्ट्र में भी वो जो नाथ संप्रदाय है, हाँ हाँ। क्योंकि ज्ञानेश्वर जो थे वो एक ब्राह्मण परिवार में, लेकिन उसके पिताजी जो है छोड़ के गए, फिर आए, इसके लिए उनको बहिष्कार डाला। फिर अल्टीमेटली उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ करके उन्होंने बाद में तंत्र साधना सीखी, समाधि लेने से अच्छा पहले। अच्छा। उसको हमको जो है थोड़ा सा अनर्थ करके, कनेक्ट करके, कि जो तंत्र साधना है वो यहाँ भी कैसे, जैसे जो नाथ संप्रदाय के साथ में जुड़ी हुई है और कैसे फैली है, ये हमको थोड़ा एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। राइट। वो मैं अभी कर रहा हूँ। नाथ संप्रदाय के ऊपर बाबा ने लिखा भी है, बोला भी है, डिस्कोर्सेस है बाबा के। और बाबा जैसे जब गोरखपुर में आए थे और वो गोरखनाथ मंदिर देखने के लिए गए थे, वहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें नाथ संप्रदाय के बारे में बोली थी। तो उन सारे डाटा को कोरिलेट करना पड़ेगा यस, सब जानने के लिए। जैसे बाबा जब यहाँ मुंबई आए थे, तो ये जो बुद्धिस्ट गुफा है ना, क्या नाम, हम लोग को अंधेरी के पास हाँ, में है, तो वहाँ बाबा कानेरी, गए थे। हाँ, कनेरी केव। हाँ, कानेरी कनेरी केव्स गए केव। थे, एलिफेंटा भी लेके हाँ गए थे। हाँ। तो वहाँ पर बाबा ने बहुत सारी चीजें बताई थी उस केव्स के बारे में। कुछ लोगों ने नोट करके रखा होगा या कहीं पब्लिश हुआ होगा, तो वो सब चीज देखनी पड़ेंगी। उसमें एक वो मेरे को याद है, 2 मिनट में बताता हूँ मैं। बाबा ने पूछा था कि एलिफेंटा में हाँ। जो शिव की मूर्ति है और हम्म। कानेरी में जो शिव है, एक के गले में जनेऊ है और दूसरे के गले में नहीं है, ऐसा क्यों है? अच्छा अच्छा। अच्छा। तो बोला था कि एक जो है वैष्णव लोगों ने बनाया है और दूसरा जो है वो शैव लोगों ने बनाया, जो तांत्रिक तंत्र साधना वाले थे उन्होंने बनाया। हम्म। तो इस तरह का एक बाबा ने एक्सप्लेनेशन दिया। अच्छा, ऐसा था। अरे अभी एक नेक्स्ट मीटिंग हम लोग की ऑलरेडी लाइन अप है 9 बजे की, और 5 दिन ओके, पहले हमको अपना ये खत्म करना पड़ेगा। तो ठीक है अभी ठीक है जितना हम लोगों ने जो बातें की है, इन बातों से ये है कि सीरियसली हम लोग इस काम में जुट जाएं। कम से कम दिन में 2-4 घंटे भी टाइम देंगे तो बहुत काम आसानी से हो जाएगा। नहीं अ, दादा, तो हम लोग को करना क्या चाहिए, मतलब जैसे आप कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, ये एक बात है ना। अगर नहीं, जैसे शुभेंदु दादा ने लिया है कि जो सेंटिमेंटल लेगेसी है, उसके ऊपर ये सह्याद्री समाज के बारे में डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, कल्चरल और एंड उसके ऊपर, हाँ सेंटिमेंटल लीगल। हाँ, सेंटिमेंटल लेगेसी के बारे में। और दूसरा जो हम लोग लोगों के लिए बात कर रहे थे और फ्लैग के बारे में बात कर रहे थे, उसका भी जिम्मेदारी शुभेंदु दादा ले रहे हैं कि वो कुछ पुरानी डायरी है सुभाष दादा की, वो रूपा तीतानंद दादा के पास में है, तो वहाँ उनसे वो कलेक्ट कर लेंगे। तो उसके ऐसे हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि वो बाबा की रिपोर्टिंग में सुभाष जी हमेशा जाते थे, तो कुछ नोट किया होगा उन्होंने, तो उसमें मिल जाएगा हम लोग को। तो इस तरह से सब लोग अपनी एक जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं।
अब आपको क्या करना है तो मैं अलग से आपको बताता हूँ दादा, यदि आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। ना आप बता दीजिए, मैं कर दूंगा, इसमें क्या जो मेरे ठीक है, से होगा। ठीक है लिख दादा, दीजिएगा। ठीक है, ठीक है दादा। तो फिर हम लोग मीटिंग कहीं खत्म करते हैं, हम लोग 1 मिनट थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद से मीटिंग समाप्त ठीक है। करेंगे। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। परम पिता बाबा की जय। जय।